get better results in your study, it is very important to manage your time and your efforts in a smart and effective way so that you can get better results in less time by consumption of a less amount of energy that will lead towards success and to achieve the goals of your life. I'm Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. Today's lecture is a part of a series of lectures in which we are going to discuss all the tips and tricks which are going to make your study more effective, and we will find out the solution of all those problems which you are facing during studies जो आपकी study को less effective बना रहे हैं. So before moving toward the lecture, don't forget to subscribe my channel and to press the bell icon, and if you are liking my videos, press the like button and comment section में अपना feedback जरूर comment करते रहें. Now, when we talk about the study pattern, we talk about the study methodology, we talk about the tips and tricks of the study. In the last lecture, we have been discussed the 5 tips which are important to improve your study. You should go through from the previous tips ताकि आपका connection build हो जाए नए आने वाले tips के साथ. Tip जिसकी हम बात करेंगे, that is very important, and that is find the best place of your study. When we talk about the study place, तो वो ऐसा study place होना चाहिए which are going to increase your focus on your study. ये देखा गया है कि type of student you are in the class will be different the type of the student you are behaving in the library, behaving in your bedroom. So environment is affecting your student behavior, your learning behavior very importantly. आपको एक ऐसा study environment select करना है which can improve your learning methodology, which can improve your learning process. ठीक है? That place should be as isolated as possible. उसमें आपकी distractions कम होनी चाहिए, आपका अपने surrounding से आपकी social activities कम हो, आपके surrounding में आपको disturb करने वाले लोग नहीं होने चाहिए. You should not have a Wi-Fi connection over there. Your cell phone should be on silent so that you can concentrate on what you are going to study. उस isolated place को search करने का, उस isolated place पे study करने का आपको फायदा ये होगा, you can develop interest in your topic. आप less time और less energy खर्च करके ज़्यादा learn कर सकते हैं, ज़्यादा effective learn कर सकते हैं. You can mature your concept more effectively as compared to that कि आप किसी शोर शराबे वाली जगह पे बैठे हुए हैं या जहाँ पर आपको बार बार distractions का सामना करना पड़ रहा है. And the second very important point, you can develop your interest in that topic जो आपके लिए least interesting है. इससे ये होगा कि when you move towards an isolated place, उस topic को पढ़ने के अलावा आपके पास कोई और option नहीं होगा. You are not being distracted by your cell phone, you are not being distracted by the people surrounding you. तो क्या होगा कि आप उस टॉपिक के ऊपर with the passage of time आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, and when you are having interest that topic, तो वो टॉपिक आपके लिए मजीद मुश्किल नहीं रहेगा. So by choosing a separate place, by choosing an isolated place can increase your productivity, और आप उन तमाम टॉपिक्स में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो जिनके बारे में आपका ख्याल है कि you are not good in that and you are not having interest in that topic. Second very important point, you should to be clear about your goals. When we talk about the goals, what you want to be in your life, why are you studying, आप अपनी सारी efforts क्यों कर रहे हैं, you should to be clear about that. You want to be a doctor, engineer, social media activist, entrepreneur, campaigner, what you want to be in your life वो आपको clear होना चाहिए. Write your goal on a paper, और फिर वो तमाम problems, वो तमाम मुश्किलात, वो तमाम hurdles जो आपको आपका goal achieve करने के लिए रोक रही हैं, write them on a paper also. ठीक है? पेपर पे लिखने से ये होगा कि आपके सामने visually आपके goals और आपके सामने visually आपके obstacles होंगे, और definitely फिर आप कोशिश करोगे कि आप अपनी तमाम efforts put करो to achieve your goals, और आप उन तमाम problems, उन तमाम obstacles से बचने की कोशिश करो जो आपको आपका goal achieve करने के लिए रोक रहे हैं. इस सब का effect आपकी लाइफ पे ये होगा कि that will leads toward the success, that will act as a motivational energy for you. So जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो व्हाट इज सक्सेस?
सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, सक्सेस इज अ नेम ऑफ अ सेट ऑफ हैबिट्स। ये हैबिट्स का मजमुआ है। व्हेन यू आर सक्सेसफुल, जब आप कामयाब हो जाते हैं कि आप इन तमाम हैबिट्स को अपनी ज़ात के अंदर बिल्ड कर लें, तो वो अच्छी हैबिट्स आपको सक्सेस की तरफ लीड करती हैं। सो दिस पॉइंट विल टेक अस टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर एंड दैट इज बिल्डिंग ऑफ द इफेक्टिव हैबिट्स। जब हम हैबिट की बात करते हैं तो हम इसको एक एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं कि वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी डू द टूथ ब्रश, हम शावर लेते हैं, वी गेट रेडी फॉर आवर वर्क प्लेस। तो इस सारे काम को करने के लिए हमें डेली किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। हम डेली मोटिवेशन लेक्चर्स नहीं देखते कि हम डेली ये सब करने के लिए हमें कहीं से एनर्जी आए। ये हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है और हमारे अंदर एक हैबिट डेवलप हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह से आप किसी भी चीज़ को अपनी हैबिट बनाने के लिए सक्सेसिवली उसको अपनी ज़ात के अंदर लेके आएंगे। सक्सेस को अचीव करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है टू बी अ गुड लर्नर, वो ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग स्टडी की हैबिट डेवलप करें। पहला वीक आप 10 मिनट्स जो हैं अर्ली मॉर्निंग उठ के स्टडी कीजिए। आफ्टर दैट आप अपना टाइम पीरियड जो है उसको 10 मिनट से 15 मिनट कर लीजिए। सेकेंड वीक आप 15 मिनट अर्ली मॉर्निंग स्टडी करेंगे एंड इन द थर्ड वीक यू कैन इंक्रीज दैट टाइम टू द 20 मिनट्स। इस तरह आप अपने टाइम को 2 आवर्स तक ले जाइए बिफोर गोइंग टू योर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अर्ली मॉर्निंग आप जो है वो स्टडी करने की हैबिट डेवलप करें बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन यू आर फ्रेश, योर माइंड इज फ्रेश। तो आप जो नॉलेज भी माइंड में लेके जाएंगे, माइंड विल एक्सेप्ट इट मोर एफिशिएंटली एंड मोर इफेक्टिवली। और जितना ज्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली आप लर्न करेंगे, उतना ज्यादा वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट हैबिट जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, दैट इज ऑफ डूइंग द हार्ड वर्क बिकॉज टैलेंट कैन नॉट रिप्लेस द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क एंड टैलेंट शुड गो साइड बाय साइड। इफ यू आर अ टैलेंटेड स्टूडेंट एंड यू आर नॉट डूइंग द हार्ड वर्क, तो आपके क्लास में मौजूद वो तमाम स्टूडेंट्स जो टैलेंटेड नहीं है बट दे आर डूइंग हार्ड वर्क, दे कैन बीट यू। वो आपको लाइफ के किसी ना किसी मौके पे जरूर पीछे छोड़ देंगे बिकॉज दे आर पुटिंग कॉन्टिन्यूस हार्ड वर्क टुवर्ड्स देयर गोल। वो अपने गोल को अचीव करने के लिए मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। सो इफ यू आर अ टैलेंटेड स्टूडेंट, तो ये जरूरी है आपके लिए कि आप हार्ड वर्किंग भी हो। सिर्फ टैलेंट पे रिलाई करके यू कांट अचीव योर गोल। सो टू बी हार्ड वर्क शुड बी अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट हैबिट जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, दैट इज डूइंग द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। जो कॉन्सेप्ट भी आप कहीं से भी ले रहे हैं, डू देयर प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। आप एक कॉन्सेप्ट कहीं से भी ले रहे हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करने के लिए तमाम सोर्स ऑफ मीडिया से उनकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम लें और उसकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा आप एक कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने माइंड में उस कॉन्सेप्ट को मैच्योर कर रहे हैं। सो स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग, डू हार्ड वर्क and do practice of your concept as much as possible. And the fourth point is the source of knowledge. एक ही concept को different source of knowledge से clear करने की कोशिश करें because it has been studied कि different source of knowledge आपके mind के different parts को activate करता है. You can watch the videos, you can watch the graphical representation or a diagrammatic representation of that topic. आप उस topic को अपने textbook से study कर सकते हैं, notes, class notes study कर सकते हैं. You can discuss it with your classmates, ठीक है. When you are studying a same topic in a different way or different source of knowledge से आप उसका knowledge ले रहे हैं, तो वो आपके mind के different portions को activate कर रहा है और जितना ज़्यादा brain stimulate होगा, उतना ज़्यादा वो knowledge को अपने अंदर retain करेगा. So be sure कि आप एक concept को किसी एक ही source of study से study नहीं कर रहे. Try to find multiple source of knowledge of the same topic so that you can retain that topic in your mind for a long time. The last tip of today's lecture is choose your hard days. आप वीक में कोई एक डे ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए इन विच आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे आप एग्जाम डेज में बिहेव कर रहे हैं. यू हैव टू स्टडी ऑल द डे. आप अपने मोबाइल फोन से डिस्कनेक्टेड हैं, आप अपनी सोशल लाइफ से डिस्कनेक्टेड हैं. यू आर स्टडिंग ऑल द डे और आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप एग्जाम में बिहेव करते हैं. इसका फायदा ये होगा जब आपके एग्जाम डेज होंगे तो आपके लिए कंसंट्रेट करना और सारा दिन स्टडी करना और लॉन्ग आवर्स तक स्टडी करना जो है वो मुश्किल नहीं रहेगा.
मिलेगा बिकॉज यू आर इन प्रैक्टिस। आप इसकी प्रैक्टिस अपने प्रीवियस डेज में करते आ रहे हैं। सो मेक इट पॉसिबल कि आप वीक में अपने लिए एक हार्ड डे जो है उसको चूज करते रहें और अपनी बॉडी को एक मशीन की तरह समझें, अपनी बॉडी को विद द पैसेज ऑफ सम टाइम फ्यूल देते रहें, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, अपनी बॉडी को अच्छी फूड जो है ड्यूरिंग द स्टडी देते रहें। दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स हो सकते हैं। अवॉइड द जंक फूड और हाई प्रोटीन डाइट लें। हाई प्रोटीन डाइट इट हैज बीन स्टडीड कि वो आपकी मेमोरी को स्टिमुलेट करता है, आपकी मेमोरी को इंक्रीज करता है। एंड द लास्ट पॉइंट, द मोर एक्टिव यू आर इन योर लर्निंग द मोर इफेक्टिव इट विल बी। जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन से, जितना ज्यादा एक्टिव होके आप किसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जितनी ज्यादा आप अपनी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उतना ज्यादा वो आपके लिए इफेक्टिव होगा, उतना ज्यादा वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टडी टिप्स टू इंक्रीज योर लर्निंग एंड टू decrease the efforts and energy and time. Stay tuned और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें उन तमाम टॉपिक्स के नाम जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं।